آئیے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جس کا مطلب ہے اے محبوب تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بعض مفسرین کرام کا ماننا یہ ہے کہ یہاں نماز سے مراد عید کی نماز ہے اور قربانی سے مراد واضح ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس پہ کچھ چرچا کریں، ہم آپ کو بتا دیں کہ آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، جس میں حضرت ابراہیم اعلیٰ نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت بہت ہی خوبی کے ساتھ ہم سبھی حضرات مناتے ہیں۔ اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی واقعہ یا کسی طرح کی کوئی کہانی سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ قربانی کے فضائل، اس کے کچھ مسائل جو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ دیکھیے جو قربانی کا مہینہ ہے وہ حج کا بھی مہینہ ہے۔ چرچا حج پر بھی ہونا چاہیے، کچھ گفتگو اس پر بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ حج کا معاملہ سب سے نہیں ہے، حج کا تعلق تمام لوگوں سے نہیں ہے، وہ کسی افراد پر کبھی کبھی فرض ہوتا ہے یہ معاملہ۔ تو جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ کسی کو حج پہ جانا ہو، اس کے مسائل دریافت کرنے ہو، تو اس ایک آدمی کا میٹر ہوگا۔ اس کے لیے جو ہے اس ایک آدمی سے پرسنلی بات کر لیں گے، انہیں سمجھا دیں گے یا ان سے مسائل پر گفتگو کر لیں گے۔ لیکن قربانی کے مسائل یہ قریباً تمام ہی لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ اسی لیے حج پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، ہم قربانی کے مسائل پر ہی گفتگو کریں گے۔ حدیث پاک میں قربانی کے تعلق سے کیا آیا ہے دیکھیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، وہ کہتی ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ یہ اماں عائشہ فرماتی ہے۔ آگے کہ سرکار نے یہ فرمایا اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کیا کرو۔ یہ ایک حدیث پاک تھی۔ ہم اس پہ بہت زیادہ چرچا آپ کے سامنے نہیں کریں گے، فضائل کو لے کر ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے ہم مسائل رکھیں تاکہ آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو، جو ضروری چیزیں ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو جائے۔ ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قربانی واجب کس پر ہے۔ آج قربانی کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے، جیسے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب لوگوں کے دلوں میں ایک سوال آئے گا کہ یہ دوسرے لوگوں کے بارے میں کیوں بات ہو رہی ہے، کیونکہ جہاں دارالاسلام ہوتا ہے، جہاں اسلامی سلطنت ہوتی ہے، اس جگہ پہ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اسلامی سلطنت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اسلام کی طرز زندگی اپنانا ضروری ہے، اسلام کے قوانین کے موافق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دوسرے لوگ اس ملک میں رہتے ہو تو کیا ان کے ساتھ زبردستی کریں گے؟ جو غیر مسلم ہو کہ آپ کو بھی قربانی کرنی ہے، تو کہتے نہیں، وہ اپنی زندگی جیے، ان کے مذاہب میں جو ہے وہ کریں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے مقیم ہونا، مطلب مسافر نہ ہو۔ اگر مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ ہاں اگر وہ اس قدر مالدار ہے، وہ سفر کی حالت میں بھی اگر کرنا چاہتا ہے تو کرے، اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس پر واجب نہیں ہے قربانی کرنا۔ اگر مسافر ہے کرنے کو کر سکتا ہے۔ تیسری شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ کتنا مال ہو ایک آدمی کے پاس کہ جس سے قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔
یہ بہت اہم ہے. اب اس کی جو وہ بتائی گئی ہے کہ کتنا مال ہونا چاہیے، جو مقدار ہے، جو ایک حد ہے، جو ایک کوانٹیٹی ہے، اس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. حدیث پاک میں یہ جو آج اوزان چل رہے ہیں 10 گرام 5 گرام، گرام کا سسٹم تو تھا نہیں، تولہ کا سسٹم تھا، درہم کا، دینار کا، ماشا کا، مسکال کا، اوقیہ کا اور رتل کا، مد کا، سا، اوقیہ، اس طرح کے اوزان ہوتے تھے. تو اب قربانی واجب ہونے کے لیے جو تیسری شرط ہے مالک نصاب ہونا، وہ کتنا مال ہونا چاہیے؟ تو بتا رہے جو شخص 200 درہم چاندی کا مالک ہو. اب 200 درہم چاندی کی مقدار اس وقت کتنی ہوگی، کتنے گرام چاندی ہوں گی، یہ جاننا ہے. تو ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں کہ 1 درہم چاندی جو ہے وہ 3 گرام 265 ملی گرام. 1 درہم چاندی 3 گرام 265 ملی گرام. جب اس کو آپ 200 سے آپ اس کو ضرب دیں گے، آپ کی زبان میں اس کو گنا کریں گے، تو یہ ٹوٹل 653 گرام 184 ملی گرام اتنا ہونا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آج چاندی کی قیمت کیا ہے. آج بھاؤ جب معلوم کیا گیا نیٹ سے اور 1-2 جگہ پوچھنے کے بعد، فون فان کرنے کے بعد، تو پتا چلا کہ 60,000 روپے کلو ہے چاندی. صحیح ہے، یعنی 60 روپے گرام. اس اعتبار سے کچھ کم ہے، 59,000 کچھ ہے، 999 یا 900، اس کو 60 پورا پوری مانا گیا. اب 60,000 کے اعتبار سے اگر 653.184 ملی گرام کو اگر آپ ضرب دیتے ہیں تو 39,191 روپے 0.4 پیسے ہیں. یعنی ہر وہ آدمی کہ جن کے پاس قریباً 40,000 روپے ہو جائے آج کی چاندی کے ریٹ کے اعتبار سے. آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے. اور عربی تاریخ، اردو تاریخ، آج انگریزی تاریخ کتنی ہے؟ 24 جون 2022. آج کے اعتبار سے چونکہ کیا ہے کہ اگلے سال اگر اس کی قربانی کی قیمت، اگر چاندی کی قیمت اگر بڑھ گئی تو پھر وہ سسٹم بڑھ جائے گا کہ اب 40,000 میں نہیں ہے، اگر بڑھ گئی اس کی قیمت چاندی کی تو 50 بھی 45,000 بھی یہ ہے قیمت. اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ کتنی قیمت ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی دوسرے اوزان ہمارے پاس موجود ہے جن کو کسی طرح کی کوئی بھی معلومات کرنی ہو. درہم کسے کہتے ہیں، دینار کسے کہتے ہیں، تولہ کسے کہتے ہیں، ماشا کسے کہتے ہیں، مسکال کسے کہتے ہیں، رتل کسے کہتے ہیں، سا کسے کہتے ہیں، اوقیہ کسے کہتے ہیں، ان تمام کی معلومات ہمارے پاس ہے. اگر کسی کو ضرورت ہو تو لے سکتے ہیں. اب بتانا یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس اگر 40,000 روپے ہیں تو کتنے روپے ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے. اب کسی کے پاس اگر 40,000 روپے تو ہے، پر یہ ہے کہ اس کے اوپر 50,000 یا 30,000 کا قرض ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں. اب یہ جو تیسری شرط ہے مالک نصاب ہونا، کہ جو آدمی 200 درہم کا مالک ہو تو وہ کس اعتبار سے مالک ہو؟ تو کہتے ہیں کہ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو. 20 دینار کا معاملہ الگ جائے گا، چونکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہو اتنے پیسے میں اگر کسی کی اگر مالیت اگر بڑھ رہی ہے، بن پا رہی ہے، اگر مالک نصاب ہو پا رہا ہے تو اسی سے قربانی واجب ہو جائے گا. اسی لیے ہم نے چاندی کی صرف مثال دی. اگر سونے کی بھی مثال کہیں گے تو ہم سونے کی بھی مثال دے سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے. تو جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے. حاجت سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم کا مالک ہونا ہے. اب حاجت، ضرورت، یہ ضرورت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں ضرورت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان، کھانا داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور. آج جانور کا سسٹم نہیں کہ کوئی گھوڑا یا اونٹ سے سفر نہیں کرتا ہے، تو آج کہہ لیجیے 4 ویلر 2 ویلر. اس کے علاوہ جس کے پاس مان لو کہ اس کے پاس تجارت کے اتنے سامان ہیں. تجارت میں 2 طرح کے سامان ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو آپ بیچنا چاہتے ہیں یا جس کو آپ نے بیچنے کے لیے تیار کیا ہے، اور ایک وہ سامان ہے جو تجارت کا آلہ ہے. جیسے کسی کے یہاں فیکٹری ہے تو اس میں کوئی ایسی مشین ہو جس سے کوئی سامان بنایا جاتا ہو، کوئی چیز تیار کی جاتی ہو، تو جو مشین ہے اس پر، اس کی وجہ سے نہیں، جو سامان ہے اور اس مشین پر بھی زکات نہیں ہے. لیکن جو مال تجارت ہے، جو سامان بنتے ہیں، جو پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں، اس پر مال زکات ہے. اس کی اگر اتنی قیمت ہو. اچھا ایک بات اور فرق جان لیجئے کہ زکات اور قربانی کے وجود میں بڑا فرق ہے. ایک ہی فرق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. زکات کے لیے کیا ہے کہ 200 درہم چاندی پر پورا سال واپس ہونا ضروری ہے، گھومنا
हौलाने हौल पूरा साल उस पर गुजरना जरूरी है। और कुर्बानी के वजूद के लिए साल गुजरना जरूरी नहीं है। अगर कोई शख्स 9 जिलहिज्जा को मालिक निसाब नहीं था, यानी उनके पास हाजत असलिया के अलावा 40,000 रुपए नहीं थे, और 10 जिलहिज्जा को जिस दिन कुर्बानी है, या 11 को या 12 को, 12 तक कुर्बानी है, अगर 12 के दिन भी अगर वो मालिक निसाब हो गया, यानी उनके पास 40,000 रुपए हो गए, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। साल घूमना इसमें जरूरी नहीं है, ये बात याद रखना, ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? ये फर्क जानना जरूरी है। ज़कात में क्या है कि साल घूमना जरूरी है, पूरा साल, हौलाने हौल। अच्छा, अब इसके लिए हाजत के लिए हमने बता दिया, हाजत से मुराद घर मकान है, कपड़े हैं, खानादारी के सामान है। हाँ, मालिक तिजारत जो है वो हाजत में शामिल नहीं है। उसकी वजह से अगर किसी शख्स के पास कोई दुकान है, हाँ गाड़ी है, तो उसकी वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं हो जाएगी। जाहिर सी बात है, किसी आदमी के पास अगर 4 व्हीलर हो तो ये एकदम बिल्कुल दुनियावी निजाम के खिलाफ है कि किसी के पास 4 व्हीलर हो और उसके पास 40,000 रुपए जायद ना हो जिसकी वजह से कुर्बानी वाजिब हो जाए। ऐसा नहीं होता है, सही है कि नहीं? जिनके पास 4 व्हीलर होगी उनके पास इतनी रकम तो होगी जिससे कुर्बानी वाजिब हो जाए। ये चीज हमने बता दिया। अगर उस शख्स पर दैन हो, अगर दैन को मुकम्मल यानी कर्जा हो और उस कर्जा को अगर अदा करे तो वो मालिक निसाब ना रहे, यानी उसके पास 40,000 से कम हो जाए बैलेंस, तो ऐसी सूरत में फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। एक बात और याद रखिए कि उन पैसों का आपके हाथ में, आपकी जेब में होना जरूरी नहीं है। अगर दुकान में है तब भी आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब, आपके बैंक में जमा है तब भी आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब, या माले तिजारत में पैसे फैले हुए हैं तब भी उसकी वजह से कुर्बानी वाजिब। समझ रहे हैं आप? सामान्य तिजारत में हम आला की बात नहीं कर रहे, जो मशीन है उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो प्रोडक्ट आपके यहां बनी हुई चीजें इतनी हैं कि उसकी वजह से उसकी कीमत 40,000 को हो रही है। या किसी के पास यह है कि रहने सहने के मकान के अलावा और 1-2 कमरे हैं जिसको उसने किराए पे दे रखा है, तो उस कमरे की वजह से उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अगर उस मकान की कीमत 200 दिरहम यानी 40,000 हो रही है, और आज अमूमन कोई भी कमरा 40,000 क्या तो 10, 20, 30 लाख का कमरा हो जाता है एक कमरा। उसके अलावा अगर किसी के पास ये नहीं है सिर्फ रहने सहने के लिए मकान है, लेकिन एक खेती की जमीन है, तो खेती की जमीन की वजह से उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ये याद रखिएगा, खेती की जमीन की वजह से कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ज़कात खेती की जमीन की वजह से वाजिब नहीं होगी। खेती की वजह से जो जमीन है उस पर उश्र है, उस जमीन की ज़कात क्या है? उश्र है। जो खेती हो वो है ज़कात। इंसान के ऊपर अलग से उसकी ज़कात नहीं है, लेकिन हाँ उस खेती की जमीन की वजह से उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। उससे आगे हम आपके सामने ये कहेंगे कि कुर्बानी 10वीं जिलहिज्जा को की जाती है। सबसे अफजल 10वीं जिलहिज्जा है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा करना हो और ना समझ में आए या ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा जानवर कुर्बानी करनी है, तो ऐसी सूरत में चाहे तो 11 को करे, 12 को करे, लेकिन 10 अफजल, उसके बाद 11 फिर 12। अब इसमें देखना यह है कि कुर्बानी के बारे में हुक्म क्या है कि जब कुर्बानी के शरायत मज़कूरा ये तमाम चीजें पा ली जाए, उसमें एक शर्त थी जो हमने बताया था आपको, तीसरी शर्त थी तवंगुरी मालिक निसाब होना, चौथी शर्त है उसमें हुर्रियत आजाद होना। आज ये सिस्टम खत्म है कि आजाद कोई, हर आदमी आजादी होता है। हाँ यह है कि बालिग होना इसके लिए शर्त है, अगरचे इसमें इख्तलाफ किया गया लेकिन फतवा इस पर है कि बालिग होना शर्त है। अब सवाल यह है कि कोई शख्स अगर 3-4 भाई है, 1-2 भाई बाहर रहते हैं और 2-4 घर पर है, तो ऐसी सूरत में उनकी कुर्बानी कहां की जाए? तो चूंकि बाहर रहने वाला आदमी जाहिर है इतनी तो उम्र होगी कि वो बालिग हो, तो अगर उसकी कुर्बानी घर पर करनी हो तो उसकी इजाजत जरूरी है बालिग बच्चों की तरफ से। और अगर नाबालिग कोई बच्चा है और उसके पास बाप की विरासत की तरफ से या कैसे भी वो मालिक के निसाब है, उसके पास 40,000 रुपए का वो छोटा बच्चा अगर मालिक है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन कर दे तो बेहतर है। लेकिन हाँ अगर बालिग बच्चे लड़के हैं, कोई आदमी यहां अपने घर पे उनके वालिद करना चाहते कुर्बानी, तो ऐसी सूरत में उन लड़कों की इजाजत जरूरी है। बगैर इजाजत के अगर कुर्बानी करे तो कुर्बानी होगी ही नहीं, इजाजत जरूरी है। ये चीज चूंकि इबादत है, इबादत में नियत शर्त है, इसके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। अब बकरा बकरी इसकी अगर कोई शख्स कुर्बानी करे तो इसमें एक ही हिस्सा होता है, सभी जानते हैं। लेकिन अगर गाय है, ऊंट है, भैंस है, इसकी अगर कोई कुर्बानी करे तो इसमें 7वां हिस्सा जरूरी है।
7वां हिस्सा से ज्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। इसकी मिसाल लीजिए, एक जानवर है जिसमें 6 लोग शरीक हुए, जिसमें 6 लोग शरीक हुए। अब 6 लोग शरीक हुए, उसकी कीमत अगर 21,000 रुपए हो जाए या 22,000, 25,000, 30,000 जो भी हो, मान लो 30,000 कीमत हो गई, तो 6 5 अगर 30,000 कीमत हो जाए तो अब 6 लोगों में उसको तकसीम करना है, बराबर बराबर सब के सब उसकी कीमत दे दे। 6 लोग मिलकर अगर एक जानवर कुर्बान करे तो उसकी कुर्बानी जायज है 6 लोगों की। मगर एक जानवर में अगर 8 आदमी शरीक हो जाए तो कुर्बानी किसी की नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर एक का हिस्सा 7वें हिस्से से कम हो जाएगा, फिर किसी की कुर्बानी होगी, किसी की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। एक जानवर में ज्यादा से ज्यादा 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बाकी 2 3 4 5 एक अकेले करे, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। इसमें एक चीज और बता दें आपको, अगर जानवर शिरकत में है, यानी कई लोग अगर किसी जानवर में शरीक होकर अगर कुर्बानी करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है कि या तो आप पहले ही नियत कर लें कि हम इसमें और दूसरे लोगों को भी शिरकत करेंगे, जैसे यहां पे होता है, या यह है कि आपने बाद में शिरकत करा, लेकिन अगर मालदार है तब भी कोई हर्ज नहीं है, बाद में भी अगर शिरकत करें। अब हमने बताया ना कि अगर 6 लोग है, 6 लोग एक जानवर में, तो जरूरी नहीं है कि ये 6 के 6 बराबर बराबर कुर्बानी करे। अगर 5 लोग एक एक हिस्सा कुर्बानी करे और 6ठा आदमी जो है 2 हिस्से कर दे, तब भी कोई हर्ज नहीं, सबकी कुर्बानी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? बस किसी का हिस्सा जो है 7वें से कम नहीं होना चाहिए, ये याद रहे। अगर आदमी शिरकत में है, कोई ये नहीं कर सकता है कि एक काम करो तुम लोग 5 आदमी जो है 5.5 हिस्से दे दो, 6ठा आदमी कहे कि मैं आधा हिस्सा दे रहा हूं, अगर 4,000 रुपए कीमत एक हिस्से की है तो मैं 2,000 दे देता हूं, बाकी आप लोग कुर्बानी कर दो, तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी, उन लोगों की हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? हाँ, इसमें जरूरी है कि कुर्बानी कहते हैं कि कुर्बानी नाम किसका है? कुर्बानी नाम है मखसूस अय्याम में मखसूस जानवर को बनियत तकर्रुब इल्लाह कुर्बान करने का नाम कुर्बानी है। यानी अल्लाह की तकर्रुब की नीयत से कोई शख्स मखसूस दिन में, पता ये चला कि वो मखसूस दिन कौन है? 10, 11, 12, और जानवर भी मखसूस है। अब अगर कोई शख्स मुर्गी को कुर्बान करना चाहे या कोई और दूसरे हलाल जानवर को, तो उसकी कुर्बानी भी मखसूस जानवर है। वो जानवर जाहिर है ऊंट है, गाय है, बकरी है। अब गाय में जरूरी नहीं कि सिर्फ नर और मादा सब शामिल है, उसी तरीके से ऊंट में नर और मादा सब शामिल है, यानी भैंस में नर और मादा सब शामिल है, बकरी में नर और मादा सब शामिल है। बकरी में एक चीज और कहीं कहीं पे यह है कि अगर वो खस्सी अगर कर दे बकरा का, तो कहा जाता है कि उसकी कुर्बानी कई जगह पे इस तरह के मसले आते हैं कि बकरे की कुर्बानी दुरुस्त है कि नहीं, जिसके खुशियां निकाल लिए जाते हैं जो खस्सी है। तो सरकार आरत ने इसका जवाब दिया है कि सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि खस्सी की कुर्बानी अफजल है, क्योंकि उसका गोश्त बकरा से ज्यादा अच्छा होता है खस्सी का गोश्त, यानी जिसकी खुशियां निकाल दिए जाते हैं। तो ये कुछ मसाइल। उसके अलावा हम आपके सामने कुछ बातें और रखने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी आखिर आदमी करे कब, कुर्बानी किस वक्त करे, 10वीं जिल्हिज्जा को करे तो कब करे, नमाज ईद से पहले या बाद में। तो अगर शहर में कुर्बानी की जाए तो शर्त यह है कि नमाज ईद के बाद कुर्बानी हो, नमाज ईद के बाद कुर्बानी हो। अगर पहले अगर कुर्बानी करे तो फिर कुर्बानी नहीं हो पाएगी, नमाज ईद के बाद शहर में जरूरी है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि शहर में जितनी जगह नमाज ईद होती हो हर जगह हो जाए, तब है, नहीं। यहां जिस इलाके में ये लोग, जितने लोग यहां के रहने वाले हैं इस सोसाइटी के, यहां की मस्जिद में ईद की नमाज हो गई या ईदगाह में ईद की नमाज हो गई, तो सिर्फ यहां के लोगों के लिए नहीं बल्कि इस शहर के पूरे लोगों के लिए यह है कि वो आप कुर्बानी कर सकते हैं, चाहे किसी एक ईदगाह या एक मस्जिद में भी कुर्बानी की नमाज हो गई हो, तो अब उसके बाद कुर्बानी की जा सकती है, जायज है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मसाइल कुछ और भी है, लेकिन यह है कि वक्त बड़े कम है, शायद इसके लिए हमें कई चीजें यह है कि जैसे कुछ लोग मिलकर अगर कुर्बानी करें, 2-2, 3-3 लोग ज़बह करने के बारे में मसला क्या है कि अगर छुरी को एक आदमी हाथ में पकड़े हों और अगर 2 आदमी मिलकर ज़बह कर रहे हों, तो दोनों आदमी का बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। कोई एक अगर समझे कि वो सामने वाले ने तो पढ़ लिया है, हम तो सिर्फ हाथ रखे हैं, एक ने पढ़ लिया शायद काफी है, नहीं, कुर्बान वो जानवर हलाल ही नहीं होगा, और जानवर हलाल ना होने का मतलब ये कि कुर्बानी होगी नहीं। अगर छुरी में 2 लोग हाथ लगाते हैं तो दोनों लोगों को बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है, और अगर एक हाथ लगाते हैं तो फिर जो लगा रहा है हाथ उसका बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है, बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। हाँ, कुर्बानी की जो दुआ है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी
चाहे पहले की दुआ हो या बाद की जो दुआ होती है, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन करके फिर लोगों का नाम लिया जाता है, कमा तकब्बलता मिन खलीलिका इब्राहिम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो बाद में दुआ पढ़ी जाती है, ये जो पहले की दुआ और बाद की दुआ है, ये पढ़ना जरूरी नहीं है, मुस्तहब है सिर्फ। अगर कोई ना पढ़े तो ऐसा नहीं कि कुर्बानी नहीं होगी, कुर्बानी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह पढ़ना ये जरूरी है ज़बह करने वाले के ऊपर। अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो फिर कुर्बानी ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि जानवर हलाल ही नहीं होगा। हाँ, कुर्बानी के लिए हमने बता दिया कि जानवर में कौन कौन से जानवर होने चाहिए। कुर्बानी की जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। कई कई जगह पे ये मसला मशहूर है कि अगर बकरी का बच्चा इतना मजबूत है, इतना तगड़ा है कि वो दिखने में अगर 6, 7, 8 महीने का हो, अगर दिखने में साल भर का लगे तो कुर्बानी जायज है। कई कई जगह पे इस तरह का है। ये बकरी के बारे में नहीं है, ये मसला दुम्बे के बारे में है। बकरी के बारे में मसला यह है कि उसकी उम्र कम से कम 1 साल हो। अगर 1 घंटा भी 1 साल में कम हो तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं, कुर्बानी होगी ही नहीं किसी भी सूरत में। 1 घंटा भी अगर कम हो, 1 दिन तो दूर की बात है, 1 घंटा, बल्कि अगर आप 1 सेकंड भी कह देंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है। इससे भी अगर कम हो तो कुर्बानी होगी नहीं। तो कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? ऊंट होनी चाहिए। और बकरी हो तो उसकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। ऊंट हो तो 5 साल, गाय भैंस हो तो 2 साल, 2 साल, और अगर बकरी हो तो 1 साल कम से कम इसकी उम्र होनी चाहिए। हाँ, यह है कि कुर्बानी के जानवर को ऐसा होना चाहिए कि वो ऐब से खाली हो। अब सवाल यह है कि ऐब किसे कहते हैं, कितना ऐब होना चाहिए, कब कुर्बानी हो जाएगी, किस जानवर की किस जानवर की नहीं होगी। ऐब कहते किसे है? ऐब याद रखिए, ऐब कहते हैं कि ऐब उसे कहते हैं जिसकी वजह से जो खरीदो फरोख्त करने वाले होते हैं ना, तो तुज्जार जो जानवरों को बेचते खरीदते हैं, उनके सिस्टम के हिसाब से अगर कीमत में कमी हो जाए, जिस ऐब की वजह से वो ऐब है, जिस कमी की वजह से कीमत में कमी आ जाए, जानवर में कोई कमी है, मान लो कान है, थोड़ा सा अगर कट गया थोड़ा हिस्सा, तो इसकी वजह से कुर्बानी के जानवर में कीमत कोई कम नहीं होगी, जानवर में कोई कमी नहीं आएगी। लिहाजा अगर कान थोड़ा सा कटा है, इतना सा हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं। किसी जानवर का अगर पैदाइशी सींग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे जानवर में कोई इसको ऐब नहीं माना गया। लेकिन अगर पैदाइशी कान नहीं है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, इसके बारे में बताया गया है कि कुर्बानी नहीं होगी। तो जानवर का ऐब से खाली होना जरूरी है। अब ऐब किसे कहते हैं हमने बताया आपको। ऐब उसे कहते हैं कि जिस कमी की वजह से जो जानवर के खरीदार होते हैं, जो बेचने खरीदने वाले होते हैं, उनके यहां जिस कमी की वजह से कीमत में कमी पैदा हो जाए, कीमत में कुछ कमी पैदा हो जाए, तो उसे ऐब बोलते हैं। अब किसी जानवर का कान छेदा हुआ है तो उसकी वजह से आमतौर पर कीमत में कमी नहीं आती। अगर ऐसा हो तो उस जानवर की कुर्बानी जायज है। तो अगर कान सिर्फ छेदा हुआ है, और अगर कान 1/3 से ज्यादा कटा हो, या 2/3 से ज्यादा, अगर 3/3 से ज्यादा कटा हो, या कान बिल्कुल जड़ तक कट गया हो, तो फिर उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं। यह आपको जानना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से सींग है, अगर थोड़ा सा हिस्सा टूट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर जड़ तक टूट चुका है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं। ये यानी वो हमने बताया नहीं, ऐब को याद रखना बहुत जरूरी है कि ऐब किसे कहते हैं। ये कुर्बानी के जो मसाइल है ये बहुत अहम होते हैं, इसके बारे में खरीदार को मालूम होना चाहिए। कुछ जानवरों का घेगा निकल आता है, घेगा वो गले में होता है ना, इस तरह का जानवर अगर ऐसा हो तो अब सवाल यह है कि इसकी वजह से अगर कीमत में कोई कमी आ रही फिर तो ऐब है, कुर्बानी जायज नहीं होगी। और अगर उसकी वजह से कीमत में कोई कमी नहीं आ रही है तो कुर्बानी जायज है। अब एक सवाल और आपके सामने रख देते हैं, फिर अपनी तकरीर खत्म कर देंगे। मसाइल बहुत है, इसके लिए फिर आइंदा जुमा हमें बोलना पड़ेगा। वो एक मसला क्या है कि अगर किसी ने गावन या दूध वाले जानवर को ज़बह किया, जैसे भैंस है, गावन है, उसको अगर कोई ज़बह करे तो इसके बारे में यह है कि कुर्बानी हो तो जाएगी, मगर हदीस में इसको नापसंद फरमाया गया है। गावन ज़बह करने के बाद बच्चा पैदा हो गया तो अब उस बच्चे को क्या करें? तो शरीयत का हुक्म यह है कि अगर खाने में काम लाना हो तो ज़बह कर सकते हो, और आमतौर पर इतने छोटे बच्चे का गोश्त खाने को कोई तैयार होगा नहीं, तो एक सूरत ये भी बताई गई हो कि उसको सदका कर दें या उसकी कीमत सदका कर दें। तो हमको जो समझ में आ रहा है, और आप सभी लोग जब इस पर गौर करेंगे तो उसका बेहतर तरीका यही समझ में आ रहा है कि उसको जो है उसको उस जानवर को ही सदका कर दें। ज़बह करने से चूंकि वो जाया हो जाएगा, वो खाते तो नहीं है, लेकिन अगर मुर्दा अगर किसी भैंसा या गाय के पेट से अगर कोई मुर्दा बच्चा अगर पैदा हो तो फिर तो उसको फेंक देने का हुक्म है। और अगर जिंदा पैदा हो, अगर खाने में काम लाना हो तो ज़बह कर दें, उसको कुर्बान कर दें, और अगर नहीं खाने में काम लाना है तो फिर या तो उसको सदका कर दें या उसकी जो कीमत होगी वो सदका कर दें। ये हुक्म है, इसके बारे में जानना भी थोड़ा जरूरी था। अब जो मसाइल रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने तमाम उम्मत की तरफ से कुर्बानी करी है,
और हुजूर दुआ मांगते थे कुर्बानी के बाद कि अल्लाह ये कुर्बानी उस उम्मत की तरफ से भी है जो कुर्बानी ना कर पाए, उनकी तरफ से कुर्बानी। तो अब उसमें बहुत सारे सवालात हो सकते हैं कि एक जानवर में आखिर सरकार पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी कैसे कर देते हैं। तो ये सरकार की खुसूसियात है। हमारे और आपके लिए कानून है, कानून उनके लिए नहीं बना है कि एक जानवर में इतने लोगों को कैसे शरीक कर सकते हैं। ये सरकार की खुसूसियात में से है, वो चाहे तो एक जानवर में 1 करोड़ लोगों को शरीक कर ले। और अब अगर कोई शख्स ये चाहे कि चलो हम 6 लोग मिलकर जो है एक जानवर खरीदते हैं और एक हिस्सा जो है तमाम लोग मिलकर सरकार के नाम पे कुर्बान करेंगे, अगर ऐसा इस तरह की कुर्बानी कोई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ये अफजल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि 6 लोग एक जानवर मिलकर खरीदे, 7वां हिस्सा सब के सब बराबर पैसा देकर सरकार के नाम से उस हिस्से की कुर्बानी करे, तो ये जायज़ है। बोलने में किसी तरह की कोई लफ्ज़िश हुई हो तो सभी हजरात इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात ये कि आइंदा जुमा से आप लोग कोशिश करें, ये मसाइल दीन है, आप सुन लेंगे, मालूमात हो जाएगी। कम से कम अगर आप याद नहीं रख पाएंगे सब, लेकिन अगर एक बार ज़हन से गुजर जाए और यह हादसा आपके साथ पेश आए तो आप ये कम से कम करेंगे जरा इसके बारे में पूछ ले क्या हुक्म है, इस जानवर के बारे में क्या हुक्म है, इसकी कुर्बानी हो सकती है नहीं हो सकती है या क्या करें। कम से कम ये तो ज़हन में रहेगा ना मसाइल सुनने के बाद। आप कोशिश करें, आप पूरा हफ्ता अपने काम में रहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, सब कुछ करें। इस दिन जुमे के दिन कम से कम ये कोशिश करें कि आप 1:15 बजे तक आके हाजिर हो जाए, ताकि आपको कुछ मालूमात हासिल हो जाए। आपको मुफ्त में ये मालूमात मिल रही है, बड़ी चीज़ है। आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आपको कहीं बिस्तर उठाए पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, बस मसाइल लीजिए। आप कोशिश करें कि आप पहले आएँ ताकि मसाइल शरिया के बारे में आपको कुछ मालूमात हो जाए। ये दूसरी बात यह है कि अगले जुमा अभी ये मसाइल को लेकर 2-3 जुमा तक ये बयानात होंगे। अभी बहुत सारे मसाइल है, इसमें बहुत सारे मसाइल है। बाएं हाथ से कुर्बानी करना कैसा है, कोई बाएं हाथ से कुर्बानी करे तो क्या हुक्म है, क्या कुर्बानी करने वाले का वहां रहना जरूरी है, इस तरीके से 1-2 नहीं बहुत सारे मसाइल है। इसके बारे में अगले जुमा हम चर्चा करेंगे। और यह है कि कल शनिचर है, कल नमाज ईशा के बाद यहाँ पे मौलाना साबिर मिसबाही साहब का फ़ोन आया था कि यहाँ बाद नमाज ईशा कुछ हज और मसाइल, हज के मसाइल या कुर्बानी के मसाइल को लेकर कोई प्रोग्राम रखा गया है। तो आप तब सभी हजरात से शिरकत की उम्मीद की जा सकती है। सारे हजरात बाद नमाज ईशा शिरकत करें प्रोग्राम में। बोलने में किसी तरह की कोई लफ्ज़िश हुई हो तो इस्तिग़फ़ार करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मेरी आवाज किसी तक पहुंचे या ना पहुंचे, किसी के दिल पर असर करे या ना करे, मैं कोशिश करके अपने हिस्से का फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर आपको भी मेरी कोशिश अच्छी लगे तो इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जरूर पहुंचाइएगा। न्यूज़ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे।